Nisar sir, we have chat box for the questions. Yeah, we have chat box for the questions, ma'am. Okay, fine. Good afternoon, all. आप सभी का स्वागत है हमारे 4 दिवसीय इंटेंसिव सेशन फिजिकल लिटरेसी एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स के ऊपर। ये चीज हम कई दिनों से साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। रजिस्ट्रेशन का काउंट देखा जाए तो 250 से ज़्यादा लोग इस वेबिनार के लिए रजिस्टर हुए हैं। 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है। 100 से भी ज़्यादा लोग हमको जूम पे फॉलो कर रहे हैं और उतने ही लोग हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर रहे हैं। इंडीड ये अच्छी सी सक्सेस है। आज तीसरा चरण, आज हम इंटीग्रेटिंग ह्यूमन वैल्यूज इनटू फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसा टॉपिक जो हर एक इंसान के लिए काम का है, कुछ एक ऐसा टॉपिक जो फिजिकल एजुकेशन के लिए जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व रखता है हम सबके लिए। हम बहुत ही शुक्रगुजार है डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा वाइस चांसलर सर कि जिन्होंने ये कार्यक्रम का हमें अनुमति दिया और कार्यक्रम करने की एक राह दिखाई। हम उतने ही शुक्रगुजार हैं डॉक्टर पुलिला गोपीचंद जी के, जिन्होंने ना सिर्फ ये कार्यक्रम के लिए राह दिखाई पर उनकी उपस्थिति से जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट भी किया। At this juncture, I thank Swarnim Gujarat Sports University with a true sense of leadership, जिनको गुजरात के फिजिकल एजुकेशन के लिए कुछ करना है। आज के सेशन में हमारे साथ है डॉक्टर शीतल शेठ मैम। शी इज वर्किंग विथ MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा सौभाग्य है कि मैम टाइम निकाल के इस सेशन को एंटायरली कोऑर्डिनेट और शेयर करने के लिए हमको अनुमति दिया और उपस्थित भी रहे। मैं स्वागत करता हूँ स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ELMS स्पोर्ट्स दोनों की ओर से। थैंक यू मैडम, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला और यहाँ पे आए। मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा आगे का सेशन आप कोऑर्डिनेट करिए। डॉक्टर शीतल शेठ मैडम। Thank you, Nisar bhai. On behalf of Swarnim Gujarat Sports University, I would like to thank to give me this golden opportunity to conduct the session. That is really, it will be fruitful afterwards. And I would like to say about the session. Today's session is integrating human value in physical education. We have two great session experts, Ms. Shruti Raju and Dr. Amit Malik. So let me first introduce Ms. Shruti Raju. Namaskar. Ms. Shruti Raju is a curriculum designer. She has done her master's in human resources. She has more than 3 years of teaching experience. Even she has designed the human values manager for PE classes, that is physical education classes. She also coordinates the social media handles for the organization. I welcome you, madam, over here. And Thank you. our Namaskar. second session expert is Dr. Amit Malik. Dr. Amit Malik is Vice President, Strategy, Knowledge Management and Partnership. He has been part of the core management team at Pullela Gopichand Badminton Academy, Hyderabad. He has contributed to high performance and key strategy in various sports initiatives of the academy. He completed his PhD from Management Development Institute, MDI, Gurgaon. So I welcome Dr. Amit Malik, sir, and I wish that our session will be very much fruitful
for all those who have taken part in this session. And I would like to say the participant that please you are requested to put your question in the chat box during the session. All the questions would be answered at the end of the session as and when the time will permit. So please, I request you to start the question and the sessions. Thank you very much. Thank you, Shital ma'am. Thank you very much. I welcome both the experts to please take on the session. Ma'am, can we do it fast, ma'am? Little bit fast. Sure, sir. Please. Will you share the screen? I should share the screen. You can share the screen, Amit. Okay. So, welcome to all the participants, and thanks Dr. Sheetal for a humble introduction to the work, whatever we have been doing in our small way. तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है. हो सकता है इस टॉपिक के बारे में व्यायाम शिक्षा का जो करिकुलम है उसमें इसका फॉर्मल इंक्लूजन ना हुआ हो, बट जितने भी मैंने पूरे भारतवर्ष में अच्छे कोचिंग सिस्टम देखे हैं और अच्छे ऐसे जहाँ फिजिकल एजुकेशन हर बच्चे के लिए हो रहा है, उन सब में एक कॉमन फैक्टर था कि वहां पर सिर्फ खेल नहीं सिखाया जा रहा, वहां पर कुछ और भी चीजें सिखाई जा रही थी, खेल के बियॉन्ड थी, जो कि समाज को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी की जा रही थी. और इस विषय पर हमने आपको मैं शेयर करना चाहूंगा एक बुक है ये. The first thing is how will you develop the prioritization algorithm which is ML based? Nisa, can you put on mute? No. Machine learning algorithm for prioritization. What are the characteristics and what are the parameters you will take into the consideration? हेलो. तो ये बुक है नागराज जी की बुक है, जीवन विद्या एक परिचय, जिस बुक ने मध्यस्थ दर्शन को ध्यान में रखते हुए जीवन विद्या का एक मॉडल प्रपोज किया. इसका एक और बुक है ह्यूमन वैल्यूज प्रोफेशनल एथिक्स. ये बुक AICTE ने अडॉप्ट की है टेक्निकल कॉलेजेस में मैंडेटरी सब्जेक्ट की तरह, और मास स्केल पर टीचर्स को ट्रेन किया जाए. तो ये हमारे स्रोत है जिनके थ्रू हमने ये कंटेंट डेवलप किया है. बेसिक आइडिया ये है कि बच्चे को क्या जिंदगी भर के लिए सिखा रहे हैं और क्या जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं, और उस विषय को हमने अपने तरीके से फिजिकल एजुकेशन में इंटीग्रेट किया कि अगर ऐसी शिक्षा एक व्यायाम शिक्षा या कोच देना चाहे अपने सेशंस के दौरान, तो हमें बड़े बड़े वर्ड पता है, स्पोर्ट्समैनशिप पता है, फेयर प्ले पता है, बट ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसके थ्रू हम अश्योर हो सके कि ये बोलने से बच्चे में विश्वास पैदा होगा ही होगा, ये बोलने से बच्चे में मोटिवेशन पैदा होगा ही होगा. तो उसको हमने फ्रेमवर्क का नाम दिया. ये हमारा भारतीय फ्रेमवर्क ही है, और जीवन विद्या से बहुत सारे लोग अक्रॉस इंडिया जुड़े हुए हैं. तो अब कैन शेयर स्टोरी टू स्टार्ट. तो मैं एक रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगी जो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है कुछ साल पहले. 4th ग्रेड में एक बच्चा ज्वाइन किया था जिसको पोलियो की कंडीशन थी. तो वो बच्चा अन्य स्टूडेंट्स की तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करता था, अच्छा पढ़ाई करता था, मगर वो कभी ग्राउंड पे नहीं आता था, वो इन्फीरियर फील करता था, कभी PE क्लास नहीं आता था खेलने कूदने के लिए. तो एक दिन ये हुआ कि
स्कूल के बाद जब पीई टीचर कंपाउंडर के साथ ग्राउंड इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो उसने देखा वो बच्चे को उसके पेरेंट्स उठाकर ले जा रहे हैं गोद में। तो पीई टीचर ने बताया कि ये बच्चे को मैंने कभी देखा नहीं। तो कंपाउंडर की तरफ से डिटेल्स मिली कि वो बच्चा 4th ग्रेड में पढ़ रहा है। तो नेक्स्ट डे जब 4th ग्रेड की सेशन थी पीई क्लास की और बच्चे आ गए, तो वो एक बच्चा मिसिंग था। तो पीई टीचर सारे स्टूडेंट्स से पूछने लग गए कि ऐसा कोई बच्चा है। तो बच्चे बोलने लग गए कि हाँ सर है, और वो हमारा दोस्त है, हमारी तरह ही पढ़ता है, ही इज इक्वली गुड इन स्टडीज। तो पीई टीचर बोलने लगे क्या क्या तुम्हें मन नहीं करता उसके साथ भी खेलने का? तो बच्चे बोलने लगे हाँ सर हमारा तो बड़ा मन करता है, मगर वो कभी ग्राउंड पे ही नहीं आता रिसेस में भी, तो हम क्या करें? तो पीई टीचर बोलने लगे कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, मगर मुझे तुम सबकी हेल्प चाहिए। तो बच्चे इमीडिएटली राजी हो गए। तो हुआ ये कि नेक्स्ट डे जब पीई टीचर क्लास में गए और बोलने लगे कि तुम पीई क्लास क्यों नहीं आते या ग्राउंड में खेलने क्यों नहीं आते रिसेस टाइम में? तो बच्चा बोलने लग गया कि सर मेरी ऐसी कंडीशन है तो मैं प्रेफर करूंगा क्लास में बैठने के लिए। तो फिर पीई टीचर थोड़े दिन छोड़ दिए, फिर बाद में बीच बीच में टच करते रहे बच्चों को कि तुम ठीक है ग्राउंड पे आ जाओ, पीई क्लास में बैठ जाओ, स्पेक्टेटर की तरह बस सिर्फ ऑब्जर्व करो गेम्स को, वो तो मजा तुम ले सकते हो। तो बच्चे उसको कैरी करके ग्राउंड तक लाते थे उसके फ्रेंड्स, और बच्चा एज ए स्पेक्टेटर ही रहता था थोड़े दिन तक। फिर बाद में धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगी, ही स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन द गेम्स। जब उसके फ्रेंड्स अच्छा खेलते थे, ही यूज्ड टू चीयर अप फॉर देम, आई मीन ही यूज्ड टू क्लैप फॉर देम, चीयर अप फॉर देम। तो ये देखकर पी टीचर एक दिन उससे पूछने लगे अगर ऐसा कोई गेम हो जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते क्या तुम करोगे? तो बच्चा बोला कि सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, मगर आपसे मुझे हेल्प चाहिए। तो फर्स्ट सेशन में वो गिर गया, तो दूसरे 2 सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे धीरे धीरे ऑन एंड ऑफ वो बच्चा सीख गया कि हाँ मुझे भी मजा आता है खेलने में। तो ये देखकर उसके पेरेंट्स उसके लिए क्रचेस लाए। तो क्रचेस की मदद से वो धीरे धीरे दौड़ने लगा, और फिर एक दिन पी टीचर के पास आया और बोलने लग गया सर ऐसी कोई छोटी स्मॉल इंटेंसिटी एक्टिविटी हो या कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर दूं, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पार्टिसिपेट। तो धीरे धीरे उसके पार्टिसिपेशंस इम्प्रूव होने लग गए, और प्लेग्राउंड में खेलने की वजह से उसकी जो इम्यूनिटी थी वो भी बढ़ गई। तो उसके पेरेंट्स एक दिन स्कूल आए और पी टीचर से कहने लगे सर आपका मोटिवेशन हमारे बच्चे को बहुत चेंज लाया है, तो हम और क्या कर सकते हैं उसको और मोटिवेट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के, वी वांट हिम टू बी इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया कि न्यूट्रिशियस फूड दो और घर में भी ऐसी कोई एक्टिविटीज कराओ कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बढ़े। तो अभी का समय है वेयर ही सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड रनिंग हिज ओन बिजनेस। तो जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब के 2020 की बात है, जनवरी की बात है, वो अपने स्कूल गया, स्कूल जाकर अपने पी टीचर से मिला स्टाफ रूम में, अन्य टीचर के सामने वो मिठाई का डब्बा लिया और बोला कि सर मैंने अपना बिजनेस खोला एंड इट्स रनिंग वेल, अच्छा चल रहा है बिजनेस एंड ऑल थैंक्स गोज टू यू। तो पी टीचर ने बोला कि मेरा योगदान अकेले का नहीं है, मगर तुम्हारे पेरेंट्स का भी है जो तुम्हारे लिए केयर करते थे, तुम्हारे दूसरे फ्रेंड्स भी है जो तुमको क्लास तक लाते थे, तुमको मोटिवेट करते थे, तुमको चीयर अप करते थे, जिससे तुमको वो कॉन्फिडेंस आया कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद कर सकते हो। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और लैंग्वेजेस है, तो ये उनको नॉलेज देता है, मगर उनका रियल एप्लीकेशन होता है हमारे ग्राउंड पे, पी क्लास में, जहाँ पर बच्चे डिसीजन मेकिंग स्किल्स लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स करते हैं। तो ऐसी और अन्य अनसीन वैल्यूज है जो रिफ्लेक्ट होती है ग्राउंड पर, और प्लेग्राउंड एक वही जगह है जहां पर बच्चे आगे के फ्यूचर, एक रियल वर्ल्ड को फेस करने के लिए रेडी हो जाती है। सो अमित, वुड यू लाइक टू ऐड एनी फर्दर डिटेल्स? तो श्रुति ने बोला, तो मैं अब भी ये शायद 4th-5वीं बार सुन रहा हूँ, पर मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं सुन के कि और एक जो वर्ड उन्होंने बोला वो मैं शेयर करना चाहूंगा, दैट एज ए PE teacher you cannot change the world,
but as a PE teacher you can change world of each individual. दोबारा बोलूंगा, आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, बट किसी की आप दुनिया बदल भी सकते हो. तो वो इंस्टेंस ऐसा ही बहुत सारे में व्यायाम शिक्षक जब हमने काम किया, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनने को मिली, और ये हमारा फर्ज था कि हम उनके लिए भी सम्मान रखते हुए इन चीजों को पूरे देश में शेयर करें कि हमारे शिक्षक किस तरह का काम कर रहे हैं. और आज का जो सेशन है, इट इज सैल्यूटिंग ऑल सच पीपल ऑन द ग्राउंड, जिन लोगों ने खेल के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज को आगे लेके समाज का निर्माण किया है. तो ये आज का जो सेशन है, जैसा हमने बताया कि हमने एक फ्रेमवर्क को रेफर किया है, आज का सेशन सिर्फ आपकी समझ के लिए है. आप समझो कि ये फैक्ट नहीं है, ये एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है, जो नेचुरली आपको एक्सेप्टेबल लगे तो आप इसको एग्री करना, वरना आप इसको कंट्राडिक्ट करते रहना जब तक आपको इसका सही समझ ना मिले. तो आज का पूरा जो सेशन है एक प्रस्ताव है आपके लिए कि हम इस तरीके से भी फिजिकल एजुकेशन की तरफ नजर डाल सकते हैं. शुरू करते हैं फिजिकल लिटरेसी के रिकैप से. हम एक छोटी सी आइस ब्रेकर करेंगे जहां पर आपको स्पोर्ट आइडेंटिफाई करना होगा. फर्स्ट ऑप्शन है मूवी दंगल. ये मूवी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से जुड़ा है? रेस्पॉन्स आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. मूवी दंगल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन आप टाइप कीजिए. राइट, ऑलराइट, सभी ने सही आंसर दिया है. अभी सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे हम. It's going wrestling, 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 wrestling. Yes, and that's the right answer. सेकंड ऑप्शन है मूवी लगान. मूवी लगान कंप्लीट करने से पहले आंसर्स आ गए, एंड दैट्स द राइट आंसर. द थर्ड ऑप्शन इज Cricket, hockey. Okay, that's right. Mainly the conclusion is that Amazing performance from the participants. Next, Mary Kom. Boxing. Yeah. Fifth movie is भाग मिल्खा भाग. स्पोर्ट से जुड़ा है. Athletics, running. And that's perfect. So all correct responses. Yes. Alright. So अभी शुरू करते हैं फिजिकल लिटरेसी के रिकैप से. फिजिकल डोमेन हमने पहले फिजिकल लिटरेसी सेशंस में कवर किया है, डिस्कस किया है. कॉग्निटिव है हमारे थिंकिंग स्किल्स, हमारे एनालाइजिंग स्किल्स. अफेक्टिव डोमेन है हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा बिहेवियर. बेसिकली वैल्यूज इंटीग्रेटेड इन ईच पी सेशन. और इसको अगर आज फर्स्ट सेशन में हमने गांधी जी के उससे लिंक किया था कि दिल, दिमाग और शरीर तीनों फिजिकल एक्टिविटी क्लास में एक्टिव होने चाहिए. दिल भी लगना चाहिए, दिमाग भी चलना चाहिए, और शरीर को तो काम करना ही है. तो वो एग्जाम्पल रिलेट करना आसान है. आगे बढ़ेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर. कंपटीशन वर्सेस एक्सीलेंस, मेडल्स फॉर अ फ्यू और फिजिकल लिटरेसी फॉर ऑल. There has always been one winner in a class. मगर क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं कि सारे बच्चों के स्कोर्स इंप्रूव हो? पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, नीचे दिखाकर आगे बढ़ना, इसको कंपटीशन माना गया है. We should always focus on all-round personal development of our students. हमें हमारे बच्चों के टैलेंट्स, एबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज को जानना चाहिए. एक्सीलेंस में हम हमारे रिसोर्सेस, हमारी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मगर in competition we push others behind us. Now we'll understand what is competition versus excellence
in a PE class. यहाँ पर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, डू वी फोकस ऑन फ्यू स्टूडेंट्स और ऑल स्टूडेंट्स? क्या हम सारे स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं या थोड़े स्टूडेंट्स पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, should we look for a few talented students or map the talent in each? क्या हम थोड़े टैलेंटेड स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं या हर एक बच्चे के टैलेंट को मैप करना चाहिए? तीसरा और आखिरी प्रश्न, व्हाट आर वी प्रमोटिंग बाय आवर एक्शंस, वर्ड्स एंड गेस्चर्स? हम हमारे एक्शन से, वर्ड से क्या प्रमोट कर रहे हैं? इसको थोड़ा ऐड करेंगे कि कंपटीशन हम टूर्नामेंट ना लेके, अब सिंपल क्लास में लेके चले, क्लास में कितने बच्चे टॉप कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा क्लास में एक बच्चा टॉप कर सकता है, दो बच्चे ज्वाइन टॉप कर सकते हैं। क्या पिछले 50 साल में किसी क्लास में नंबर ऑफ टॉपर्स चेंज हुए? आंसर होगा नहीं। पहले भी 10वीं क्लास में टॉपर था 10 साल पहले, 5 साल पहले भी था, अभी भी 1 साल पहले है। पर दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम सिर्फ बच्चों को टॉप करा सकते हैं जो कि कुछ ही रहेंगे नंबर में, या ऐसा हो सकता है कि हर 100 में से 100 नंबर ला सके? मैक्सिमम अगर हम लेके चले स्पोर्ट्स में कि सब्जेक्ट में, अगर वो 100 नंबर है, तो ऐसा पोटेंशियल तो एग्जिस्ट होता है कि कोई नेचुरल फोर्स हमको नहीं रोक रही कि 100 में से 100 नहीं ला सकते। तो दो तरीके हैं कि मैं टॉपर हमेशा रहेंगे, कोई ना कोई डेफिनेटली रहेगा, बट एक्सीलेंस में क्या है, ऐसा ग्रुप, ऐसा माहौल जहां पर हम पूरे के पूरे बच्चों को ये प्रयास करें कि वो जहां पर भी है वहां से आगे बढ़े, और टॉपर चाहे 60 का 70 की बजाय जो 50 वाला था वो 60 पे है, 60 वाला 70 पे जाए, 80 वाला 90 पे जाए, पर सबके सब 100 की तरफ बढ़े। और ऐसा कोई अगर पॉसिबल है टीचर कोच, तो शायद 100 में से 100 हर बच्चे का आ सकता है। तो वो एक मॉडल है कि क्या हमको औरों से बेटर बनना है या खुद को बेटर करना है। तो ये जो कंसेप्ट है ये मूलभूत है फिजिकल लिटरेसी का भी और ह्यूमन वैल्यूज का भी। और इसमें जो सवाल हम सब के लिए है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब फिजिकल एजुकेशन क्लास करा रहा होता हूँ तो मेरा माइंड का ट्यूनिंग क्या है? क्या मैं ऐसा सोचता हूँ कि अरे कितना फास्ट बच्चा है ये बच्चा, इसको तो कोच स्प्रिंट वाले कोच को, क्या मैं ऐसा सोचता हूँ? या ये चाहता हूँ कि जो हमने फर्स्ट दिन भी आपको प्रपोज किया कि क्या हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को टैलेंट मैपिंग से रिप्लेस कर सकते हैं इन फिजिकल एजुकेशन क्लास, कि हर बच्चा किसी ना किसी चीज के लिए टैलेंटेड है। जिसने 2 पुशअप किए वो 3 करेगा, जिसने 10 किए वो 11 करेगा, तो सब एक्सीलेंस की तरफ में ले जाऊं हर एक को। तो ऐसा कहीं हमसे अपने शब्दों में, भाव में हो तो नहीं रहा ऐसा कि हम कुछ को प्रमोट कर रहे हो। तो ये आप सब लोग हो सकता है बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपने कुछ सवाल कर सकते हैं। ये अगर इन तीनों के आंसर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्शनली फिजिकल लिटरेसी या ह्यूमन वैल्यूज की तरफ अलाइन दिखोगे अपने आप को। आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर जो है सेल्फ एंड बॉडी। ह्यूमन बीइंग इज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी एंड देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द बोथ, जहां पर बॉडी रेफर किया जाता है हमारे फिजिकल बॉडी से which performs actions for us, and self refers to our human existence, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारे लिए डिसीजंस लेता है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जब हम चलते हैं वी यूज अ बॉडी फॉर वॉकिंग, मगर चलने का डिसीजन हमारा सेल्फ लेता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं, फूड इज फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, मगर क्या खाना खाना है ये डिसीजन भी हमारा सेल्फ लेता है। अभी सेल्फ एंड बॉडी कॉन्सेप्ट को और बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ये टेबल देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर ट्रस्ट, विश्वास, रेस्पेक्ट, सम्मान, हैप्पीनेस,
खुशी. On the contrary, the needs of the body are food, clothing and physical facilities. क्या हम ये बता सकते हैं कि हमें हैप्पीनेस या विश्वास या रेस्पेक्ट कितने टाइम तक चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन? नहीं बता सकते हम, बिकॉज हमें हैप्पीनेस या ट्रस्ट या रेस्पेक्ट ये हमेशा के लिए चाहिए. Therefore, the needs of the self are continuous. क्या हम ये बता सकते हैं कि हमें फिजिकल फैसिलिटीज जो नीड्स ऑफ द बॉडी है कितने टाइम तक चाहिए? हम कह सकते हैं कि हमें खाना या फूड ब्रेकफास्ट में चाहिए, लंच में, डिनर में और स्नैक्स में चाहिए. और कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम. हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती है. एग्जाम्पल गाड़ी जो हमारे घर में हमेशा रहता है, मगर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हमारे पास रहता है, only when we are participating in a particular sport will be using that particular sport item. Coming to in-measure needs of self and body. क्या हम measure कर सकते हैं? Thank you very much. So, sir, do we have any other paper to be presented in this session? Sorry. I think something. Okay, let's go ahead, Shruti. क्या हम मेजर कर सकते हैं कि हमें लाइफ में कितनी हैप्पीनेस चाहिए, कितना ट्रस्ट या रेस्पेक्ट चाहिए? नहीं मेजर कर सकते हम. Therefore, the needs of the self cannot be measured. Coming to the needs of the body, क्या हम मेजर कर सकते हैं कि हमें कितने फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए? हमें कितनी गाड़ी चाहिए? कह सकते हैं हम कि हमें 1 गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी चाहिए. I need a pair of clothes, I need a pair of shoes. मुझे क्रिकेट खेलने के लिए 1 बैट, 1 बॉल की जरूरत है. Therefore, physical needs of the body, the needs of the body can be measured. इसको जैसे श्रुति ने एक्सप्लेन किया, हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें एक बॉडी है, एक सेल्फ है. और सेल्फ वो है कि जो हम चाहते हैं, हमारी कंटिन्यूअस नीड है उसकी. बॉडी की नहीं, श्रुति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टेम्परेरी नीड्स है. तो इसको अगर वैसे लिंक करें आपसे किसी ग्राउंड के माहौल से, तो आपको क्या स्टूडेंट का रेस्पेक्ट एक बार चाहिए? 1 घंटा चलेगा, बस 1 घंटा पी क्लास में बात कर लें, उसके बाद उल्टा भी बोले, नमस्ते ना करे, चलेगा? तो शायद आप बोले कि नहीं, रेस्पेक्ट तो कंटिन्यूस चाहिए. और जो एग्जाम्पल श्रुति ने शुरुआत करी कि एक पी टीचर का रेस्पेक्ट लाइफ है, और जब वो बच्चा उससे मिलने आया होगा तो उसके भाव आप लोग सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो. हम उस भाव को काउंटेबल मेजर नहीं कर सकते. जो चंद्रशेखर जी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि उनको कितना खुशी हुआ होगा, वो हैप्पीनेस मेजर नहीं हो सकती. बट ऐसा रेस्पेक्ट कंटिन्यूअसली चाहिए उनको, क्योंकि वो ऐसा काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं. जबकि बॉडी का नीड क्या है कि अगर आपको अपना फेवरेट ढोकला खाना है, पोहा खाना है, तो बॉडी को चाहिए, हमें टेस्टी है, वो पसंद है. पर अगर वो आपको बोलो कि आपको 1 किलो खाना है, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा है. अगर 2 किलो बोलेंगे तो भाई इसको रहने दो आज के लिए, आज का तो बहुत बस हो गया. तो इन अ वे हमारा बॉडी एक टाइम तक ही उसको लेगा जब तक उसका नीड होगा, उसके बाद वो नहीं लेगा. और इन दोनों को सेग्रीगेट करना इसीलिए जरूरी है कि स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन में हम कौन सा नीड को चेज कर रहे हैं. और इसका एग्जांपल आपसे शेयर करेंगे. हमने जब गुजरात में वर्कशॉप करी, तो हमने, आप जैसे व्यायाम शिक्षक है, उनसे ही पूछा कि आप व्यायाम शिक्षक क्यों बने, आपको अपने गुरु से क्या मिला, और आप एक शब्द में बताइए आपको अपना गुरु क्यों याद है. तो सबसे पहला आया, गुरु से मुझे डिसिप्लिन मिला. दूसरा आया, गुरुजी से मुझे सपोर्ट मिला. तीसरा मिला, कोच साहब ने मेरा वैल्यू हेल्प सिस्टम में हेल्प किया. और जब सारा चीज करते गए तो सब ये बोले कि असल में तो हमको रेस्पेक्ट चाहिए. गुरु जी से हमको रेस्पेक्ट करते हैं आज भी. और ये सवाल तब हमने उनसे पूछा कि जैसे आज आप अपने गुरु को रेस्पेक्ट कर रहे हो, ऐसे ही आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट करेंगे, तो ऐसा में क्या करें आज की डेट. तो सेल्फ वाला पार्ट इसीलिए हम बाद कॉन्टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में श्रुति भी
आपका क्विज के थ्रू चेक करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम है नीड्स का, सेकंड है सेल्फ नीड्स ऑफ द सेल्फ और थर्ड है नीड्स ऑफ द बॉडी। तो मैं एक एक करके नीड बोलूंगी जिसको आप आइडेंटिफाई करके चैट बॉक्स में टाइप करना होगा 1 या 2। फर्स्ट इज फूड। अगर आपको लगता है कि फूड इज अ नीड ऑफ द सेल्फ तो चैट बॉक्स में 1 टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी 2 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। बहुत जनों ने सही आंसर दिया है, फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी। 2 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 2। या तो नेक्स्ट बढ़ेंगे टेस्टी Good. फूड। अगर आपको लगता है कि टेस्टी फूड इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टाइप 1, एल्स अगर आपको लगता है कि टेस्टी फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी टाइप 2। 1 1 1 1 1 in between there were 2 2s 1 1 1 1 1 1 So 1 is the right answer. Tasty there food should be some 2s self है। there should be some 2s people should follow me also तो फूड इज अ नीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के नरिशमेंट है। मगर फूड में अगर ऑप्शंस दिया जाए तो टेस्टी फूड, न्यूट्रिशियस फूड बहुत सारे रहते हैं। तो टेस्टी फूड इज एन ऑप्शन taken, the decision taken by the self, therefore 1 is the right answer for tasty food. नेक्स्ट हम चलेंगे ब्रांडेड बैट की ओर। अगर आपको लगता है कि ब्रांडेड बैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टाइप 1, ब्रांडेड बैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ देन टाइप 2। again goes 1 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 ऑल राइट, almost all 1 ओके। सो ब्रांडेड बैट, बैट कोई भी बैट ले सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट इज अ नीड ऑफ द बॉडी टू प्ले द स्पोर्ट। मगर किस ब्रांड से चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड से ही चाहिए, दैट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ। I'll move on to the next one, कार फॉर ट्रांसपोर्ट। अगर आपको लगता है कि कार जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टाइप 1, इफ कार फॉर ट्रांसपोर्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी टाइप 2। it goes 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 it's a mixture of answer या सो अगर हमको ए से बी डेस्टिनेशन तक जाना है, अगर डेस्टिनेशन दूर है तो हम चूज करेंगे कोई ट्रैवल के लिए व्हीकल चूज करेंगे हम, एंड कार फॉर ट्रांसपोर्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, रेस्पेक्ट। अगर आपको लगता है कि रेस्पेक्ट इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टाइप 1, इफ यू थिंक रेस्पेक्ट इज अ नीड ऑफ द बॉडी टाइप 2। it's 1 1 1 1 1 1 1 going 1 That's the right answer. We'll move on to the next one, medal. If medal is the need of the self type 1, if you think that medal is the need of the body type 2. all goes 1 And that's right, everybody has got it. दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक्सरसाइज जो हम बच्चों को कराते हैं फिजिकल एक्टिविटी की या फिर पी क्लास में। इफ यू थिंक एक्सरसाइज इज अ नीड ऑफ द सेल्फ टाइप 1, you think exercise is a need of the body type 2. exercise is a need of body everyone says 2 Perfect. तो यहाँ पर मैं कुछ और एक्सटेंड करूंगी, एक्सरसाइज इज डेफिनेटली अ नीड ऑफ द बॉडी, मगर एक्सरसाइज जो आउटकम्स होती है, जो हैप्पीनेस मिलता है हमको, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, those outcomes of exercise are again the needs of the self. All right, so most of our participants have got the concept right. We'll move on to the next concept. Values. Values are 9 feelings, and they are trust, respect, and we have caregiving feelings, which are affection, care, and guidance. And we have values which help us recognize the efforts. They are gratitude, reverence, and glory. And finally, we have value love,
विच सरपासेस ऑल द अदर वैल्यूज। तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू ट्रस्ट से। ट्रस्ट जो है विश्वास। जैसे एक बिल्डिंग को पिलर सपोर्ट करता है, कोई भी रिलेशनशिप में विश्वास, ट्रस्ट जो है वो नींव रहता है कोई भी रिलेशनशिप में। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट इज अ फीलिंग दैट द अदर थिंग्स गुड ऑफ मी एंड विशेस फॉर माय हैप्पीनेस। दूसरा मेरा भला चाहता है, मेरी खुशी चाहता है। एंड ट्रस्ट निर्भर करता है इंटेंशन और कंपिटेंस पर। जब मैं अपने आप को देखती हूँ देन आई लुक एट माई इंटेंशन, मगर जब मैं दूसरों को देखती हूँ आई लुक एट देयर कंपिटेंस। ट्रस्ट को और हम बेहतर जानेंगे एक पी क्लास में क्या होता है। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल करना चाहूंगा कि विश्वास का भावना क्या है। अभी हम ऐसा सोचते हैं कि किसी ने मैंने काम किया, उसने मेरे कहने से ऐसा किया, मुझे उस पर विश्वास है, या दूसरे के कहने पे मैंने काम किया, हमारा आपस में विश्वास है। तो विश्वास का जब डेफिनेशन देखा गया तो ये समझना जरूर था, जैसा मैं हूं ऐसा ही दूसरा इंसान भी है। और उसको समझने के दो तरीके निकाले गए कि मेरा इंटेंशन, मेरी नीयत क्या है और मेरी काबिलियत क्या है, मेरी कॉम्पिटेंस है। और इसको सिंपल तरीके से एक क्विज के थ्रू सॉल्व किया गया कि अगर कोई से पूछे कि क्या आप अपनी खुशी चाहते हो, डू यू वांट टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, तो आंसर मैक्स से मिलता है यस, मैं भाई सबको खुशी, अपना खुशी चाहता हूँ। सेकंड इज कि डू यू ऑल्सो विश हैप्पी एंड गुड फॉर अदर पीपल एज वेल, तो इसका जवाब भी आप नहीं, मैं नहीं, पूरे दुनिया में हर इंसान ये देगा कि भाई मैं दूसरों का ही भला चाहता हूँ। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या भाई सामने वाला जिससे आप डील करते हो, क्या वो अपना भला चाहता है? तो आप बोलोगे भाई हाँ भाई वो अपना भला भी चाहता है, बिल्कुल चाहता है। पर ये सवाल अब जो लास्ट वाला है, क्या आपको लगता है कि आपके सामने वाला आपका भी भला चाहता है कि नहीं? रिपीट कर रहा हूं कि आप जिससे डील करते हो सामने वाला आपका भला चाहता है कि नहीं? तो हम बोलते पता नहीं भाई, शायद ना चाहता हूं, क्योंकि जान के उसने मुझे एक बार परेशान किया, जान के शायद वो ये चाहता है कि मुझे नीचा दिखाया जाए। पर अगर इसको सेम मॉडल से लगाएं कि जब मैं दूसरों का भला चाहता हूं और दूसरा इंसान मेरी ही तरह है, तो शायद वो भी भला चाहता है दूसरों का, क्योंकि नेचुरली मुझे एक्सेप्टेबल है। ये जो हमने शुरुआत की थी कि जो चीज हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि अपना भला चाहना, दूसरों का भला चाहना, तो इसलिए फ्रेमवर्क में विश्वास को नए तरीके से देखा गया कि मैं अपने आप को तो देखता हूँ यार, हाँ मैंने चाहा कि मेरे दोस्त का भला हो, उसकी हेल्प करो, मैं गया भी उसको हेल्प करने के लिए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, मेरी नीयत बहुत अच्छी थी, पर मैं अपनी नीयत को, अपने आप को जस्टिफाई कर लूंगा, मैं तो भला चाहता था देखो उसका। पर जब दूसरे का पार्ट आता है तो हम दूसरे को सेम नजरिए से नहीं देखते और हम उसकी कॉम्पिटेंसी पे जज करते हैं कि अरे वो जान के नहीं करना चाह रहा। तो जैसे मैं इंसान हूं हर तरह, तो ये फ्रेमवर्क बोलता है हर इंसान एग्जैक्टली सेम है, हर एक की नीयत और काबिलियत दो चीजें हैं, और नीयत हमेशा हर इंसान की सेम है, इंटेंशन कि वो अपना भला चाहता है, औरों का ही भला चाहता है। वो ऐसा नहीं कर पाता, वो उसकी कॉम्पिटेंसी है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से और समझो। आज आप घर में अकेले हो, आज कोई आपके कोलीग्स आपको या और लोग आपके घर पे आ नहीं पा रहे, आपका इंटरेक्शन फोन के थ्रू ही है। अगर आपको पूरा दिन अपने कमरे में ही गुजारना हो अकेले, क्या आप ये लिख के दे सकते हो कि 24 घंटे आप खुश रहोगे? आप किसी से बात नहीं कर रहे, अपने आप, आपको फुल फ्रीडम है अपने हिसाब से करने का। पर क्योंकि हम अपने आप को ही खुश नहीं रख पाते, क्योंकि हमारा खुद का कॉम्पिटेंसी गैप है, हमारा खुद का काबिलियत का गैप है, ऐसे ही दूसरे लोगों में भी अलग अलग काबिलियत है, और वो कॉम्पिटेंसी हमसे हम एक बहुत बार खुश नहीं रख पाते। पर नेचुरल इंटेंशन हर एक का सेम है। अब इसको बारे में जिक्र करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जब क्लास में काम करते हैं, पी टीचर्स बच्चों के साथ, तो इंटेंशन और कॉम्पिटेंसी का हम खुद चेक करते हैं। हर पी टीचर मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ
वो चाहता है हर बच्चा इंप्रूव करे, ऐसा हमारा इंटेंशन होता है। पर वो पूरा जोर लगा के भी कई बार बच्चे शरारती हैं, 30 40 50 बच्चे हैं, वो फोकस कुछ पे ही कर पाता है इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उसका काबिलियत है। दूसरा, वो चाहता है कि हर बच्चा खुश भी हो, पर वो हर बच्चे को इतना खुशी नहीं दिला पाता उस 30 40 मिनट में, ये उसका काबिलियत है। तो दोनों पार्ट एज ए टीचर हम सब समझते हैं, हम सब हर बच्चे को ऐसा करना चाहते हैं, पर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें बच्चे के एंगल से भी देखने का जरूरत है। नेचुरली बच्चा भी अपना ही बेस्ट देना चाहता है, ऐसा उसका इंटेंशन, उसकी नीयत है, क्योंकि उसे खेल में मजा आता है। पर वो हर बार अपना बेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि क्योंकि वो बच्चा है, उसको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, खेल की, फ्रेंड की, इक्विपमेंट की, शरारत करने की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, और वो डिसिप्लिन कॉम्पिटेंस पे हमसे कम है, तो ये उसका कॉम्पिटेंसी गैप है। दूसरा, वो भी चाहता है कि हर टीचर को, अपने पीयर को रिस्पेक्ट करे, पर वो ऐसा बहुत बार नहीं कर पाता जब वो एंग्री है या दुखी है, सैड है। तो जस्ट गिव ए पर्सपेक्टिव कि जब हम क्लास में होते हैं तो क्या हम बच्चे के इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं या अपने इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, जस्ट अपने साथ वाले असिस्टेंट कोई सपोर्ट कर रहा है, उसके इंटेंशन पे कैसे डाउट कर रहे हैं। अगर विश्वास की भावना है तो इस फ्रेमवर्क को यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर उस सब बच्चों का इंटेंशन बेस्ट देना है तो उनकी कॉम्पिटेंसी हम धीरे धीरे काम करेंगे, बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। तो ये एक मूल सारांश है कि इस वैल्यू के बगैर हम किसी भी क्लास में किसी भी दो इंडिविजुअल का, चाहे पीयर टू पीयर है, टीचर टू स्टूडेंट है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो ये विश्वास को मूलभूत बोलते हैं। अगर विश्वास है तब हम लोग नेक्स्ट स्टेज पर जाके उसको इंप्रूव कर सकते हैं। श्रुति एक एक्टिविटी थोड़ा एक्सप्लेन करेगी आपके साथ कि हम जो बोल रहे हैं वो थ्योरी है सिंपल सा, इसको क्लास में कैसे ला सकते हो आप फिजिकल एजुकेशन की। एक्टिविटी का नाम है लावा रिवर, जिसमें बच्चों को ब्लॉक्स के जरिए आगे बढ़ना है टीम में। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो उसके दूसरे टीम मेंबर्स बोलने लग जाते हैं कि ये तो गेम बिगाड़ रहा है, नेक्स्ट टाइम इसको नहीं लेंगे। तो पी टीचर उनको ये समझाना चाहिए कि हर एक टीम मेंबर टीम को जिताने के लिए खेल रहा है, टीम को आगे बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर अगर किसी से कोई कॉम्पिटेंसी गैप हो गई, किसी से गलती हो गई, तो उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए और बेहतर परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक्टिविटी है ट्रस्ट एक्टिविटी। ऐसे और भी एक्टिविटीज हमारे पास ईच वैल्यू के है। नेक्स्ट वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप जब भी लेसन प्लान डिजाइन करते हैं, अगर लेसन प्लान ऐसा रहे जहां पर बच्चों का म्यूचुअल डिपेंडेंसी हो, तो उससे ट्रस्ट एक्टिविटी एस्टेब्लिश होगा। अगर मैं इन्हीं 10 बच्चों को में भाई एक्टिविटी ऐसी है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको सबका साथ लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है किसी का स्ट्रेंथ कम हो, कोई बैलेंस ना कर पाए, बट आइडिया इसकी हमें फिजिकल एजुकेशन में जब हम बच्चों के लिए गेम्स कराते हैं तो हमें गेम का स्ट्रक्चर और पैडागोगी ऐसा रखना पड़ता है जहां पर बच्चों की डिपेंडेंसी आपस में हो, क्योंकि जब वो डिपेंडेंसी होगी तो मेरा सक्सेस उसके सक्सेस पे डिपेंड करेगा, उसका सक्सेस तीसरे की सक्सेस पे डिपेंड करेगा, और ट्रस्ट की भावना फॉस्टर होगी, ट्रस्ट की भावना वहां पर क्रिएट होगी। तो ये एक्टिविटी एक उदाहरण है उस तरीके का, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हर फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी में आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे आपस में विश्वास के साथ उनका स्ट्रक्चर ऐसा डील करके चलते हो। रेस्पेक्ट, सम्मान। रेस्पेक्ट इज अ राइट इवैल्यूएशन टू इवैल्यूएट अ पर्सन एज दे आर। जब रेस्पेक्ट राइट इवैल्यूएशन है, उसी तरह जब किसी का राइट इवैल्यूएशन नहीं होता तो वो क्या हो जाता है उसका।
जब किसी का ओवर इवैल्यूएशन होता है तो वो कन्वर्ट होता है ईगो में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब किसी की अंडर इवैल्यूएशन या अदरवाइज इवैल्यूएशन होता है तो वो लीड करता है डिप्रेशन में। अभी अमित हमको और डिटेल में समझाएंगे कि रेस्पेक्ट ऑन ग्राउंड क्या होता है। तो आप इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। आपका साथी है अब बात कर रहे हो उससे और उसने कोई बहुत ही भारी चीज उठा दी, तो हम क्या बोलेंगे? भाई दारा सिंह हो तुम तो। बिल्कुल सही बोलते हैं। फिर अगर आपने बहुत अच्छा सपोज गरबा डांडिया डांस किया तो आप किसको किसी हीरोइन से कंपेयर कर दोगे? अरे तुम बिल्कुल ऐसे नाचे जैसे ना वहां पर वो फलाना ने डांस किया था। तो ये सब हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है। रेस्पेक्ट क्या है? सम्मान। आई आस्क यू क्वेश्चन टू यू, do we only need to respect our elders or we need to respect everyone? क्या हमें सिर्फ बड़ों का सम्मान करना है, सबका सम्मान करना है? तो रेस्पेक्ट बोलते हैं कि आप हर एक को राइट इवैल्यूएशन दोगे और सबका सम्मान करोगे। सम्मान सबके लिए जरूरी है। और राइट का मतलब सम्मान, जितना वो है उतना ही बोलना, जितना वो है उतना ही बोलना। ओवर इवैल्यूएशन, आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो क्या होगा? जैसे आपने दोस्त को बोला तुम दारा सिंह हो, तो उसके आ जाएगा उसके माइंड में, आप ईगो क्रिएट करोगे। बच्चे के माइंड में भी आपने ओवर इवैल्यूएशन किया। अंडर इवैल्यूएशन क्या होगा? अरे किसी काम के नहीं यार, तुम कितना ही कुछ कर लो तुम किसी काम के नहीं। दैट विल क्रिएट अ डिप्रेशन। अदरवाइज इवैल्यूएशन क्या होता है कि आपने बोला कुछ और किसी और से आपने कंपैरिजन कर दिया। अगर आप खेल रहे हो क्रिकेट और मैं बोलूं अरे भाई तू कुछ भी कर ले, तो गोपीचंद नहीं बन सकता। तो ऐसी भाषा हम अनजाने में यूज करते हैं। बट ऑन ए वेरी सीरियस नोट, these are very serious matter when we are giving this feedback to our children. हमको सम्मान चाहिए तो हमको सम्मान राइट तरीके से देना पड़ेगा। बी क्लास की बात करें तो ये कुछ उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। ओवर इवैल्यूएशन सिर्फ दूसरों का नहीं, खुद का भी होता है। खुद का इवैल्यूएशन क्या होगा? मैं एसडीएस से पढ़ के आया हूं, मैं तो पी का बेस्ट टीचर हूं, आई नो एवरी फिजिकल एजुकेशन। उस भावना के साथ हमारे पास रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो ओवर इवैल्यूएशन वो होता है जब मैं खुद को भी ओवर इवैल्यूएट करता हूँ। सेम वे बच्चे को ओवर इवैल्यूएट कैसे करते हैं? अरे मैं अपने स्कूल में गया सूरत में, पहला बार जो केस देखा, वो 13 साल का बच्चा, मैं लिख के दे रहा हूँ, नेशनल चैंपियन बनेगा। 13 साल का बच्चा सीनियर नेशनल चैंपियन बनेगा आज से 10 साल बाद। ये क्या है कि जो उसने किया, आपने उसको मोटिवेट नहीं किया, आपने उसे ओवर इवैल्यूएशन किया। क्लियर डिफरेंशिएशन। मोटिवेशन जब मिलेगा जब उस राइट इवैल्यूएट करोगे। अंडर इवैल्यूएशन क्या होता है? अरे मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। सेम वे हम कई बार अनजाने में आसपास बच्चों से भी करते हैं पी क्लास में, जो फिजिकली उतने कॉम्पिटेंट नहीं है या जो शाई है, मोटिवेटेड नहीं है उतने। और ऑन ए डिफरेंट नोट, कल मैं एक अभिनव बिंद्रा जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि मुझे फिजिकल एजुकेशन क्लास जिंदगी में सबसे बोरिंग क्लास लगती थी, जैसा ये पढ़ाया जाता था, जब तक कि मुझे ऐसा कोच नहीं मिला who could instill love for sports in me, who could instill the love for me in sport। तो हम बहुत सारे बच्चे जो फिजिकली उस टाइम पे कॉम्पिटेंट नहीं है, उनको अंडर इवैल्यूएट करने की गलती कर सकते हैं। इवैल्यूएशन क्या है? मैं सचिन तेंदुलकर हूं अपने एरिया का, और अपना जो रमेश है फलाना है वो चीते की तरह भागता है। अब बच्चे को बोलो चीते की तरह भागता है, वो भी कंफ्यूज कि मतलब चीता तेज भागता है, धीरे भागता है, कैसे भागता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट इवैल्यूएशन क्या होता है? मैं एक ऐसा पी टीचर हूं जो छोटे बच्चों की पी क्लास बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, और इसका मुझे एक्सपीरियंस है। लुक एट दैट कि इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज दैट टू अदर पर्सन, कि मैं बाकी चीजें बात की बात,
मैं छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा हूँ और मैं पी क्लास अच्छी करता हूँ उनकी, और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस से भी किया है। सेम वे आपने रमेश के लिए, भाई रमेश बहुत अच्छा भागता है, 13 साल का है, उसने पिछले 9 महीने में अपना 0.3 सेकंड टाइम कम कर लिया। बहुत अच्छा कर रहे हो तो रमेश, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा टाइमिंग देखो इतना इंप्रूव है, हमको और आगे जाना है। तो रिस्पेक्ट एक बहुत ही क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस है, जो क्योंकि हम अनइंटेंशनली हर पी क्लास में मेरे हिसाब से करीब 30 से 50 जजमेंट हम पास करते हैं बच्चों को, और उन 30 से 50 जजमेंट में अगर हम राइट इवेल्युएशन नहीं दे रहे हैं उस बच्चे को, तो अदरवाइज ओवर इवेल्युएशन में ये तीनों इश्यू देखने को मिलेंगे कि चैंपियन मिलेंगे तो बोलेगा ईगो होगा, अंडर इवेल्युएशन वाला डिप्रेशन में रहेगा। श्रुति, यू हैव सम एक्टिविटी टू शेयर? यस, तो ये रेस्पेक्ट एक्टिविटी है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जैसे रेड लाइट का मतलब हम सबको मालूम है स्टॉप, ग्रीन लाइट का मतलब है गो। तो जब टीचर रेड लाइट बोलते हैं बच्चों को रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट मतलब बढ़ना चाहिए। तो कभी कभी बच्चे इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, और जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं उनकी हंसी उड़ाई जाती है क्लास में। तो यहाँ पर पी टीचर को समझाना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी अलग होती है, हर एक से गलती होती है, और हर एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनके इंटेंशंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए कि वो अपना बेहतर देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दिस वाज अ समरी ऑफ दिस एक्टिविटी। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज, एंड दे आर द ओके। caregiving feelings which are affection, care and guidance. वैल्यू अफेक्शन तभी आता है जब हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट। स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू अफेक्शन से। व्हाट इज अफेक्शन? नेक्स्ट स्लाइड। अफेक्शन इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर। अफेक्शन का मतलब स्नेह भी होता है। जब कोई पी टीचर अफेक्शनेट वैल्यू एग्जिबिट करता है अपने बच्चों के साथ, जब एक टीचर अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहता है, तो बच्चे इजीली अप्रोच होते हैं अपने टीचर के पास कुछ भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। दे वोंट हेजिटेट डिस्कसिंग एनी प्रॉब्लम्स विद देयर टीचर। इसको डिटेल में अमित आपसे डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में बोले तो हम स्नेह बोलते हैं, स्नेह की भाषा। हम स्नेह करते हैं अपने उन लोगों से जिनसे रिलेटेड होते हैं। इसमें अगर आप बात करें अफेक्शन, तो शुरुआत जो होता है बच्चे का पेरेंट के साथ स्नेह बढ़ा, उसके बाद रिलेटिव आए तो हमें उनसे स्नेह है। और जब स्नेह की भावना होती है तो स्नेह में हम एक दूसरे को अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। मेरा रिलेटिव है, मान लिया वो रात को उससे गलती हुई, पर मेरा रिलेटिव है, आई विल टेक केयर। मेरी फीलिंग उसके सिमिलर है। छोटा बच्चा है, वो अफेक्शन रखता है मुझसे, उससे गलती हुई, बट आई विल कीप द फीलिंग ऑफ अफेक्शन टू देम। तो ये एक थर्ड जो भावना है जिसको फीलिंग बोलते हैं हम, कि ट्रस्ट की भाषा ये कि हम हमारे जैसा ही बच्चा है, उसका भी इंटेंशन हमारी तरह अच्छा करना है, मेरा उसका सेम इंटेंशन है। जब वो एफर्ट डालता है तो मैं उसको राइटली इवेल्युएट करता हूँ, मैं अपने आप को भी राइट इवेल्युएट करता हूँ। अगर मैं राइट इवेल्युएट करता हूँ तो हो सकता है मैं बोलूँ ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरे कोच के पास जाना चाहिए इसको, वो भी राइट इवेल्युएशन का प्रोसेस है। और जब मैं बच्चा गलती करता है, मैं इवेल्युएट भी करता हूँ, तो मैं समझता हूँ वो मुझसे संबंधित है, हम अलग अलग नहीं है। हमारे लिए स्नेह का भाव है। जैसे मेरा रिश्ता अपने बाकी रिलेटिव से है, बच्चे से ही मेरा रिलेटेडनेस है, और उस भावना के साथ मैं उसे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता हूँ। स्नेह की बात करें क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर किस तरह की स्नेह की भावना बच्चों टीचर को रखनी चाहिए। टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये फील करना कि स्टूडेंट से रिलेटेड है, कि उनके आपस का एक संबंध है, एक रिश्ता है। जो रिश्ता गुरु शिष्य का भी हो सकता है, बिल्कुल सही है वो, बट हमारे पास स्नेह भी आपस में। दूसरा, पी टीचर के साथ स्कूल स्टाफ का भी। हम टीचर एक कम्युनिटी है, और हमारे बीच में बच्चे हैं जिनकी अपब्रिंगिंग, जिनको वैल्यूज, जिनको आगे की लाइफ के लिए तैयार करना,
पूरी टीचिंग कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या मैं पी टीचर सब बच्चों से रिलेटेड फील करता हूँ, पूरे स्कूल के स्टाफ से रिलेटेड फील करता हूँ, और अपनी फैमिली फ्रेंड से मैं रिलेटेड फील करता हूँ कि नहीं? क्या मेरा भाव अंदर से स्नेह का है इन सबके लिए कि नहीं? तो ये अफेक्शन का रेलेवेंस है पी क्लास में। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बच्चों को हम ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं बहुत आसानी से कि वो फील करें टीचर के लिए, अपने पीयर टू पीयर स्टूडेंट्स के लिए भी। हमने पहले बात किया बच्चे बच्चे में ट्रस्ट होना चाहिए, राइट इवैल्यूएशन। अब हम स्नेह की बात कर रहे हैं कि दो अगर बच्चे भी हैं तो वो आपस में स्नेह की भावना रखें, और हमको ऐसी एक्टिविटीज करानी है कि वो और ज्यादा डेवलप हो। नेक्स्ट वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। केयर इज टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर टू whom वी फील रिलेटेड टू। जहां पर नर्चर होता है फूड एंड वाटर से, बॉडी का नरिशमेंट। प्रोटेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ क्लोथिंग एंड सेफ्टी वेयर फॉर द बॉडी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज। टीचर को ये ध्यान में रखना होगा, बच्चे जो प्लेग्राउंड में खेलते हैं वो फ्री ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स रहे, ताकि बच्चों को कोई इंजरीज ना हो। और जब कोई इंटेंस एक्टिविटी हो तो अप्रोप्रिएट सेफ इक्विपमेंट जैसे नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स पहने। और डिटेल में हम अमित सर से डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी। तो जब आप ऐसा सोचिए कि आप रिलेटेड फील करते हो, मुझे रिलेशन है सपोज बच्चे के साथ, अपने मित्र के साथ, परिवार के साथ। जब मैं रिलेटेड फील करूंगा तो मैं दो चीजें जरूर करूंगा अपने रिलेटेड, जिनसे मैं रिलेटेड फील करता हूँ, नर्चर और प्रोटेक्शन। नर्चर मतलब कि उनका फूड के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू। प्रोटेक्शन मतलब उनका हर तरीके से प्रोटेक्शन हो, तो इसको हम केयर की भावना दी गई। और केयर में हम क्या करते हैं कि जो हमें फिजिकल फैसिलिटीज है, जो हमने बात की बॉडी की नीड, उनको हम फुलफिल करते हैं केयर की भावना के साथ। इसका एग्जांपल अगर घर पे एज ए पेरेंट बात करें, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि बच्चे को खाना देना चाहिए? केयर की फीलिंग है। क्या आपको ये फील होता है अरे बच्चे को ठंड लग जाएगी, इसको स्वेटर पहना देते हैं? वो केयर की फीलिंग है। आप हस्बैंड वाइफ आपस में बोलोगे अरे आप बहुत टाइम से नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं, नीचे कांच गिरा हुआ है, आप चप्पल डाल लीजिए। क्योंकि हम वी वांट टू प्रोटेक्ट द पीपल whom we are related to. So all those feelings which come in us are called the feeling of care for those who are related to us. इन सबको हम केयर की फीलिंग बोलते हैं। पी टीचर क्या करेगा? पी टीचर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कंफर्टेबल वेयर पहने, ऐसे शूज पहने जो कंफर्टेबल एक्टिविटीज करने के लिए। उस केयर का लिए बहुत जरूरी है कि हम जो पूरा ग्राउंड जहां पर बच्चों को खिला रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड है, क्लासरूम है, सीढ़ियां है, दीवार है, कुछ भी है, पर वो सेफ और क्लीन है, क्योंकि वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। केयर के लिए वाटर स्नैक्स भी सोचना पड़ता है हमको, क्योंकि बच्चे जब खेलेंगे या हम भी जब वर्कआउट कराएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन होगा, और हमें हाइड्रेट करने के लिए पानी चाहिए। हमारी बॉडी को पानी का नीड है। इन बिटवीन अगर एनर्जी कम हुआ तो मुझको कुछ स्नैक्स चाहिए, सेशन के दौरान या सेशन के बाद। और सेफ इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट ना हो जिससे किसी को चोट लगती हो। जब ऐसी भावना हमारे मन में आती है क्लास से पहले, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कि मैं क्लास को कैसे तैयारी करूं, ये करने से बच्चों का नर्चर होगा और दी प्रोटेक्शन होगा, तो हम उसको केयर की फीलिंग देते हैं। बच्चों के लिए क्या जरूरी है? पहली दो चीज सेम है, पर बच्चों को ये भी इंश्योर करना है कि वो आपस में कोलिजन या लड़ाई ना करें जिससे उनको इंजरी ना हो, क्योंकि वो भी प्रोटेक्शन की फीलिंग है। तो ये जो सारी हम बात करें, ये भावनाएं हैं, ये भावनाएं हैं हमारे अंदर हैं ये, और ये हमें एक तरीका दे रही है कि कैसे हम इसी भावना इम्पैक्ट करें हमारी पी क्लास के अंदर और ओवरऑल लाइफ के अंदर भी। नेक्स्ट वैल्यू हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस। गाइडेंस इज द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन द अदर। बच्चे जब कंफ्यूज्ड हो या उनको हमारी जरूरत हो, उनको गाइड करना चाहिए। Guiding our students on the right path, the correct path. Guiding the students on taking up healthy choices.
जब स्टूडेंट्स कोई न्यू टेक्निक सीख रहा हो या कोई न्यू स्किल सीख रहा हो, तो उसके ऊपर गाइड करना गाइडेंस होता है। इसको और डिटेल में अमित आपसे एक्सप्लेन करेंगे। आपसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम सब लोग जॉब पे जा रहे थे, लॉकडाउन नहीं था, तो हम लोग के मन में क्या आता है कि अरे बच्चों को टाइम नहीं दिया, पूरा हफ्ता चला गया, तो इतवार को शाम को हम मॉल पे लेके जाएंगे, इनको खिलाएंगे, या इनके कुछ जो भी हम इनको और मस्ती कराएंगे जो इनको करना होगा। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे जब ग्रो हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा उनकी नीड क्या है? गाइडेंस की। हमने बात किया कि उनका मैच्योरिटी अभी इतना नहीं आया कि वो सारे डिसीजन खुद ले सकें, और गाइडेंस के लिए क्या चाहिए? हमको टाइम चाहिए ताकि हम उनके इश्यूज समझ सकें, एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए टीचर उसको सॉल्व कर सकें। वो बच्चे का जेन्युइन नीड है। पर शायद हम क्या करते हैं, हम गाइडेंस को केयर से रिप्लेस करने का सोचते हैं। अरे पूरे हफ्ते टाइम तो दिया नहीं, बच्चे का प्रॉब्लम भी नहीं पूछा, स्कूल में टीचर डांट मारी, कुछ गुस्सा हुए या लो सेल्फ एस्टीम फील कर रहा है, चलो मॉल ले जाके खुश कर देते हैं। तो जो केयर और गाइडेंस है, ये बहुत ही अलग अलग फीलिंग्स है। बच्चे को फिजिकल फैसिलिटी देना केयर है, बच्चे को गाइडेंस देना और राइट फीलिंग्स क्रिएट करना वो गाइडेंस है। तो गाइडेंस क्या इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास में? आप पीई टीचर हो तो आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है। पहली बात तो टेक्निक सिखाना इज गाइडेंस। आपको टेक्निक सिखाना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि क्लास में मैंने बहुत अच्छा रेड बुल का पानी लगवा दिया और उससे काम चल जाएगा, क्योंकि मैं जिस खेल के लिए एक्सपर्ट हूं उसका सही टेक्निक, चाहे वॉकिंग का टेक्निक, जंपिंग का टेक्निक, हॉपिंग का टेक्निक, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइडेंस का। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को गाइड करना हेल्थी चॉइसेस पर, नए नए चैलेंज लेने के लिए बच्चों को गाइड करना। तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स। पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही का कंप्लीट है अपने आप में। बच्चों को नया स्किल डेवलप करना, इम्प्रूव करना। दोबारा जाऊंगा, भावना अलग अलग है। मैं जिससे रिलेटेड फील करता हूँ वो मेरा रिलेटिव है, उसको फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जो नीड है बॉडी का नीड, उसके लिए मैं केयर करता हूँ। उसकी जो डेवलपमेंट की नीड्स है उसको मैं गाइड करता हूँ। इस भावना के साथ में अब जिनसे मैं रिलेटेड हूँ उनका पूरा विकास चाहता हूँ। तो ये एक फीलिंग है अंदर से जो आएगी, तो उसके दौरान हम ह्यूमन वैल्यूज को इनडायरेक्टली हर क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम न्यू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज जो हमें हेल्प करता है एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में ही। वो है ग्रैटिट्यूड, रेवरेंस एंड ग्लोरी। स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू ग्रैटिट्यूड से। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड इज टू बी थैंकफुल those who help me where I am today. ग्रैटिट्यूड बच्चों को सिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम्पल से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बैट बॉल जो है उनके खेलने की चीजें, तो बैट जो है वो किससे बनता है? वुड प्रोक्योरमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिटेल चेन, और रिटेल शॉप से जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको खरीद कर लाते हैं। इन सारे रिसोर्सेस और लोगों का योगदान रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पी टीचर या कोच जो उनको सिखाते हैं कि बैट से कैसे स्पोर्ट को खेला जाए। जब हम बच्चों को ये ग्रैटिट्यूड वैल्यू इंस्टिल करते हैं तो वे हर एक रिसोर्स का सही इस्तेमाल करते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। अमित सर आपसे डिस्कस करेंगे कि ग्रैटिट्यूड ऑन ग्राउंड क्या होता है अभी। तो ग्रैटिट्यूड, जैसा श्रुति ने बोला, हम सबको इसकी हिंदी पता है। कृतज्ञ होना, उन सब के लिए सोचना जिन्होंने मुझको हेल्प किया है। जैसा डेफिनेशन श्रुति ने बोला, ऑल दोज हेल्प मी वेयर आई एम। अब इस ग्रेटफुलनेस में ऑल दोज सपोर्ट मी, वन ऑफ द वेज टू एंश्योर कि हम क्लास में ये फोस्टर करें बार बार, कि हम प्रे करें उन लोगों के लिए, उन सब चीजों के लिए जिसके कारण आज हमें ये क्लास खेलने को मिल रहा है। इट कुड बी एज सिंपल एज one day thanking our principal, one day the school management,
बी थैंकफुल कि हमारे पास ग्राउंड तो है, कम से कम हमारे पास बेस्ट वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट नहीं है, बट जो हमारे पास इस टाइम पे है, जस्ट टीचिंग ग्रेटफुलनेस फॉर ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल विद अस। बी थैंकफुल कि हम सब लोग स्कूल में आए हैं, स्कूल में आके हम लोग ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने का। सो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग के लिए छोटे बच्चों में साइंस से ज्यादा इट हैज टू बी सिंपल प्रोसेसेस व्हिच कैन बी इनग्रेन इन द इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट में, बीच में। एंड श्रुति टेक वन एग्जांपल, ऐसी बात चीजों के बारे में सोचना जो डायरेक्ट लिंक नहीं होती। क्रिकेट बैट है, अब क्रिकेट बैट कोई तो बनाया होगा, किसी पेड़ को कट के नेचर के थ्रू मेरे पास एक बैट आया है, तो आई शुड बी थैंकफुल टू दैट ट्री एज वेल, जिसने अपना लाइफ दिया मुझको ये बैट खेलने के लिए। And thanking all those supported me with heartfully. So these are the few things through which you can promote gratitude in the class. डिस्कस करेंगे अभी वैल्यू रेवरेंस। रेवरेंस इज एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर। बच्चे जब गेम्स खेलते हैं तो कोई सम विल विन, सम विल, हार जाते हैं, उनको बहुत जेलसी की फीलिंग आती है। दे स्टार्ट एनविंग पीपल हु विन, जो बच्चे जीतते हैं उनसे जेलस होते हैं बच्चे। तो जब बच्चे रेवरेंस प्रैक्टिस करते हैं, दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स विनिंग, दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग others winning as their happiness. Amit, would you like to explain further detail in this? तो रेवरेंस का हिंदी होता है श्रद्धा। श्रद्धा का भाव रखना कि मुझसे बेटर भी और इस फील्ड में है। इट इज एन फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेलेंस इन अदर्स एज वेल, एंड दिस एक्सेलेंस इज कि मुझे अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये अच्छा है और मुझे उसका स्वागत करना चाहिए। अब जैसे हम सब बात कर रहे थे कि भाई ओलंपिक गेम होते हैं, तो हम सब लोग को बड़ी खुशी होती है, अरे इस प्लेनेट में ऐसा भी है उसेन बोल्ट जो 9.5 सेकंड में 100 मीटर भाग सकता है, और हम सब लोग दिल से क्लैप करते हैं कि भाई बहुत अच्छा, उसका अलग ही चीज है। पर हमारे आसपास भी हमसे बेहतर करने वाले, चाहे टीचर होंगे, हमसे बेहतर बहुत बार जब हम खेल महाकुंभ में जाएंगे, हमसे बेटर कोच परफॉर्मेंस करने वाले होंगे, तो हम उसके लिए भावना क्या रखते हैं? फीलिंग ऑफ एक्सेलेंस इसकी आज मेरी श्रद्धा है कि इस फील्ड को आगे ले जाने में आपका सहयोग है, आप मुझसे अच्छे हैं और मैं आपसे सीख सकता हूं। ये फीलिंग जब न्यूट्रली हम लेंगे तो उसको फीलिंग ऑफ एक्सेलेंस बोलेंगे। अब ये बच्चों के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हर बच्चा इंप्रूव कर रहा है, हर बच्चा अपने तरीके से इंप्रूव कर रहा है। कोई एक चीज में अच्छा, कोई दूसरी चीज में अच्छा है, और दूसरा अगर उससे अच्छा है तो उसको एक्सेलेंस एक्सेप्ट करना और उसे ऐसी भावना देना कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं उनसे। मैं दूसरे के लिए चीयर भी करूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं अपने अपने आर्ट में, क्राफ्ट में, स्पोर्ट्स में वो मास्टर है। तो उनको चीयर करना, एनिश करना इज अ फीलिंग ऑफ रेफरेंस, जिसको हम श्रद्धा की भावना बोलते हैं। क्लास में बात करते हैं कि रेफरेंस कब कैसे रेलेवेंट होगा। जब आप अपलॉड करोगे, एंड अपलॉड करोगे इवन दोज हु कैन बीट यू। आई एम अगेन सेइंग इट, उनके लिए भी ताली बजाना जब कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, चाहे वो आपके कंपटीशन में हो, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया। और ये श्रद्धा इसलिए कि उस खेल को आप भी जानते हो कि आसान नहीं है, बट उन्होंने किया। वो बोलते हैं अपलॉड करना एक फीलिंग है। मोटिवेट करना, मोटिवेट करना है एक दूसरे को कि आप भी अच्छा करिए, और आप अच्छे करते हो तो आपको मैं मोटिवेट करूंगा। इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमें क्रिकेट टीम में देखने को मिले। हम इंडियन क्रिकेट टीम में किसी एक प्लेयर डाउन हुआ, दूसरे ने उसको एक्सेलेंस के थ्रू मोटिवेट किया, तो उसका रिजल्ट देखने को मिला है। 2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने जीता, तो अगर बात तो युवराज सिंह ने बोला था कि ये कप सचिन के लिए था, सचिन को मुझे ऐसा रिटायरमेंट देना था, तो मैं एक्स्ट्रा मोटिवेटेड था स्पोर्ट्स के लिए, अपने दोस्त के लिए। ऐसा द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी को बोला गया है कि उनका आपस में एक दूसरे को इतना एक्सेलेंस है कि वो उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। सो दीज आर दी फीलिंग व्हिच से दैट दो दे आर कंपीटिंग टू बी द टॉप इन द टॉप, बट दे हैव फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेलेंस इन अदर। और उसके लिए में जेलसी नहीं है, जो अच्छा है उसको हम अच्छे दिल से एक्सेप्ट करते हैं।
आगे बढ़ेंगे हम दूसरे वैल्यू ग्लोरी की ओर। इट इज हैविंग अ राइट अंडरस्टैंडिंग दैट समवन हैज मेड एफर्ट्स फॉर द अदर। एक छोटा एग्जांपल बोलूंगी, जब कोई मैच जीतता है, अपने जीत की खुशी अपने कोचेस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और दूसरे प्लेयर्स के साथ शेयर करता है, वो ग्लोरी होता है। अमित सर, अभी आप डिटेल में एक्सप्लेन करिए इसको। जैसे ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड बात किया कि उन सब ने जिन्होंने मुझे हेल्प किया। ग्लोरी क्या होता है, गौरव की बात करते हैं, गौरव कि जिसने भी मुझको सक्सेस में हेल्प किया। अब पी टीचर है आप, पी टीचर सेम जैसे शुद्ध एग्जाम्पल लिया, पी टीचर को बोला भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बट कोई भी पी क्लास अच्छी क्यों हुई, क्योंकि उसके पीछे स्कूल मैनेजमेंट भी जुड़ा है, बच्चों का भी सपोर्ट है, तो उसको जो सक्सेस मिला उसके बिहाइंड जो लोग हैं उनको एक्नॉलेज करना, वो फीलिंग रखना, उसको हम बोलेंगे ग्लोरी की फीलिंग। सेम है जब बच्चा जीतता है, तो बच्चा एक एथलीट कहीं भी जाकर जब परफॉर्म करता है, उसके पीछे रोल है आप टीचर्स का, सपोर्ट स्टाफ का, पेरेंट्स का, फैमिलीज का, उन सब के लिए भावना रखना कि ये सब मिलके एक स्टूडेंट को सक्सेस दिलाए, वो फीलिंग रखना को हम ग्लोरी बोलेंगे। जब बच्चा एक्नॉलेज करेगा कि इन सब को इन सब का रोल है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एकेडमी में एक छोटे से चीज से ही आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक्नॉलेज, एक बच्चा जीत के आया, सर मैं टूर्नामेंट जीत के आया कल अंडर 13 का, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको बधाई हो। और वो थोड़ा खुश है, वो दिखाना चाह रहा है मिठाई खाओ मिठाई खाओ। उससे पूछा भाई अच्छा आपने जो पिछले 3 साल ट्रेनिंग किया तो किस किस के साथ किया, तो बोला इसके साथ किया, उसके साथ किया, उसके साथ किया, उसके साथ किया। तो ये 5 तुम्हारे जिन्होंने ट्रेनिंग तुम्हारे साथ की, उनका भी रोल है तुमको इम्प्रूव करने में, तुम्हारे रिजल्ट में। बोला हाँ इनको इनका भी रोल है, चलो इनको मिठाई दे के आओ। अच्छा आप जो खेलने आते हो कोर्ट में, तुमको पता है सुबह इसको साफ कौन करता है? हाँ, वो फलाने उनको देखा मैंने, वो करते हैं। तो अगर वो कोर्ट ना साफ करते, तुम्हें कोर्ट टाइम मिलते, क्या तुम खेल पाते? नहीं, उन्होंने तो जाओ पहले उनको भी मिठाई दे के आओ। सो दीज आर वेरी सिंपल स्टेप, आई एम जस्ट गिविंग टू गिव सम क्यूज कि हम सिंपल तरीके से ये बार बार एक्नॉलेज कराना, सक्सेस मिला है शेयर करो, सक्सेस मिला है जिन जिन ने सपोर्ट किया शेयर करो, और ये आप 10 बार करोगे, 11वां बच्चा अपने आप यूज्ड टू हो जाएगा। तो these are the feelings are which we have to develop with ourselves. These are the feelings which we would already have or we would work, पर हमको ये इंश्योर करना है कि हम फिजिकल एजुकेशन क्लास में ये भावनाएं हम जागृत कर सकते हैं सब बच्चों में। और इन भावनाओं को जागृत करने के लिए सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। ट्रस्ट का मतलब मेरा इंटेंशन बेस्ट है, बच्चे का इंटेंशन बेस्ट है, मेरा कॉम्पिटेंसी लिमिटेड है, बच्चे का लिमिटेड है, हम दोनों कॉम्पिटेंसी इंप्रूव करेंगे। बच्चे कॉम्पिटेंसी छोटा है बढ़ रहा है, मुझे इंप्रूव ज्यादा करना है, मुझको खुद की कॉम्पिटेंसी बढ़ाना है कि मैं हर बच्चे को डील करूं। रेस्पेक्ट, जब भी मैं बच्चे से डील करूंगा मुझे राइट इवेल्युएशन करना है, जो जितना बच्चा कर रहा है उतना ही बोलना है, ताकि बच्चे को सम्मान दे रहा हूं मैं ऐसा करके। अफेक्शन, मेरे जो एथलीट्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब आपस में रिलेटेड फील करते हैं, हमारा एक आपस में रिलेशन है, संबंध है, जो कि स्नेह का संबंध है। और स्नेह भावना से, जब स्नेह की भावना है तो वो उनके लिए केयर करता हूँ और उनको गाइडेंस देता हूँ। केयर करता हूँ कि उनको कोई फिजिकल इंजरी ना हो, उनको कोई बॉडी की प्रोटेक्शन का इश्यू ना हो, उनको चोट ना लगे, उनको पानी मिले, उनको उनकी बॉडी का अपकीपिंग अच्छा हो। उनको गाइडेंस देता हूँ कि वो अच्छी आदतें बनाएं, उनको गाइड करता हूँ कि अच्छा खेलना कैसे है। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा प्लेटफॉर्म बनाने का। जब बच्चा अच्छा करेगा तो उसको ये सिखाता हूँ कि तुमसे अच्छे और भी हो सकते हैं, तुमको भी इम्प्रूव करना है, किसी और में अच्छा है तो उसको एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव मन से। जब जीत जाओ तो जिन्होंने जीत में साथ दिया उन सबका साथ याद रखना है, और सबके लिए ग्रेटफुल रहना है जिन सब ने हेल्प किया। तो ये पूरा सारांश है कि इन फीलिंग्स के अराउंड अगर हम इंटेंशनल इंस्ट्रक्शन बनाएंगे और गेम में इंक्लूड करेंगे, तो हम ये इजीली ले जा सकते हैं हर बच्चे तक।
श्रुति नेक्स्ट एक्टिविटी है। ऑलराइट, स्क्रीन पर एक एक्शन डिस्प्लेड है। अगर आपको लगता है कि ये जो एक्शन है प्रेइंग बिफोर द गेम वैल्यू से रिलेटेड है, आपके ऑप्शंस हैं। वन मोर क्लिक अमित। तो श्रुति आप One बता रहे हो कि उनको ये लिखना है 9 में से कौन सी वैल्यूज है प्रे, ये जानना चाह रहे हो आप? Yeah, one more click and you'll have the options below. एक बार चैट में लिखने दिए सब लोगों को। प्रे For the game, ये एक्टिविटी एक्शन किस वैल्यू से रिलेटेड है, ग्रैटिट्यूड या केयर? रेस्पॉन्स आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। प्रेइंग बिफोर द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू विच वैल्यू, ग्रैटिट्यूड और केयर? काफी लोगों ने ग्रेटिट्यूड लिखा है, केयर लिखा है। Care, gratitude, 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 gratitude. Oh, there is one called attitude. शायद Gratitude, attitude. टाइपो हो गया है। Some typo error. It's a gratitude. Gratitude is the right answer. We'll Yeah, move on to the next gratitude is action. Gratitude. Handshake before playing a game. Which value does it relate to? And your बच्चों को बोलते हैं कि सब आपस में हैंडशेक करो, बट तो कौन सा वैल्यू हम प्रमोट करना चाह रहे हैं हैंडशेक के थ्रू? does it relate to False value gratitude, respect gratitude. or value care? Respect. Respect, 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 respect. Everyone goes respect. And the Very good. right answer is respect. We'll move on to the next action. Giving instructions before a game. Which value does it relate to? Guidance or care? Care, guidance, 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 guidance. And guidance is the right answer. We'll move on to the next set. Identifying values during a game. Wearing safety gear during a game. Which value does it relate to? Care or affection? Care, 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 care. Yeah. And care is the right value. Helping team members or opponents to get up when they fall. Which value does it relate to? Affection or care? Again goes care, 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 care. All right, over here, the right answer is affection. Helping team members get up or the opponent team members get up all is affection. The next action is PET giving instructions for activities. जब कोई changes हो game के दौरान, तो ये किस value से related है? And the options are respect or guidance. Which value does it relate to? Respect or guidance? Comes guidance, 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 guidance. And guidance is the right answer. Nice. Next action is cheering for opponents. Which value does it relate to? Reverence or guidance? Cheering for opponents during a game. Which value does it relate to? Is reverence more? And the right answer is reverence. Cheering opponents is reverence. Values after game, the first option is washing hands. Washing hands after a game. Does it relate to value care or guidance? It goes care, 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 And care. care is the right value. Next option, giving high fives after playing a game. Which value does it relate to? Respect or care? Giving high fives to the team members. Respect, 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 Yes. respect. Yes. Respect is the right value. Congratulating opponents on winning. Is it trust or relevance? Which value does it relate to? Trust or reverence? Congratulating opponents on winning. Reverence, reverence. There is one trust in between. Reverence, 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 trust, reverence,
All right, the right answer is reverence. Reverence is a value where congratulating opponents is related to thanking all after a game. Which value does it relate to? Gratitude or guidance? Gratitude or It's guidance? gratitude, everything. Majority goes with gratitude. Yes, and gratitude is the right answer. And I will summarize the whole thing now. तो thank you for patient listening. एक ही चीज humble submission करना चाहेंगे कि जितने भी अच्छे सिस्टम या फिजिकल एजुकेशन के स्पोर्ट्स के मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं, उसमें जो शिक्षा है वो जिंदगी भर के लिए, और उस शिक्षा में सिर्फ खेल के रिजल्ट के अलावा जो ये अनसीन वैल्यूज जिनको हम बोलते हैं, जो में दिखती नहीं है बट जो समाज में जाहिर होती हैं जब हमारे बच्चे वहां जाकर करते हैं, तो उसकी दृष्टि से आई स्ट्रांगली बिलीव एंड इवन इन से अगर आप बात करें गोपीचंद एकेडमी में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग है ह्यूमन वैल्यूज पर। ह्यूमन वैल्यूज की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हुई है एकेडमी में बजाय कि स्पोर्ट्स साइंस की, क्योंकि अगर एक कोच का पर्पस क्लियर है, अगर ह्यूमन वैल्यू क्लैरिटी है कि हम ये खेल की शिक्षा काम क्यों कर रहे हैं, तो एक हार्मोनी है स्टूडेंट्स, कोचेस और पूरे सिस्टम के दौरान। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल 10 साल से हो रहा है। प्रोफेसर प्रदीप जो रजिस्ट्रार हैं IIIT के, उन्होंने एकेडमी को इस डायरेक्शन में डाला जीवन विद्या की तरफ। और मैं आपको एक लास्ट चीज शेयर करूंगा। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया प्रदीप सर के साथ ही। ये एक ओथ है, ये प्लेज है एक PE टीचर की, जो आपके लिए मैं क्विकली पढ़ूंगा इन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। पढ़ रहा हूं। I shall adhere to Indian Guru Shishya philosophy that places highest responsibility on teacher to bring not only excellence but also best human value in each participant. Hence, today I take oath that understand and live the 9 dimension of teaching. First, I trust that each participant working with me has come to learn the games. I pledge that the program is for the participant and their benefit, and I shall make every effort to fulfill my role as a teacher wholeheartedly and unconditionally. I pledge to respect the competence of each participant and do not use fear or intimidation to motivate them. I accept each participant by keeping in mind their background, skills, and personality. I pledge to show affection to each participant by showing patience, by remembering that they are on learning track and they do not make mistake intentionally. I pledge to take care of the overall safety of my participant by ensuring that my practice ground and games are safe. I pledge to offer guidance to all the participants by learning and teaching the correct fundamentals and rules of the game. I pledge to do my best, not only teaching the skills of the game, but also teamwork, sportsmanship, and appreciation for excellence in other participants and teachers. I shall encourage my participant, parents, and fans of participants to exhibit positive behavior and appreciate the efforts made by both the teams towards the glory of the game. And finally, I'm aware that even when I'm a teacher, there are many teachers, my own teachers have put effort in making me a good participant and a good PE teacher. And I pledge to instill the same feeling of gratitude in my participant. I understand the path is more important than the goal, and hence I strive to the in each participant every day by practicing these dimensions of teaching. Jai Hind. This is the oath probably which summarizes what we have responsibility in the physical education. So we have received a request that can we provide this pledge to the Yes. All the presentation and pledge we will share with you, Nissan, of course.
course, I will. Even they need presentation also. Yes, yes, we will Uh, share. We will share. PDF. Yeah. So I So, request shall- Dr. Sheetal ma'am to please carry forward the session. Thank you, Nisak sir. First of all, thanks to Ms. Shruti ma'am and Dr. Amit Malik sir for a fantastic session. आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया. आपने जो वैल्यूज बताए, ट्रस्ट, इंटेंशन, कॉम्पिटेंस, रिस्पेक्ट, अफेक्शंस, उनके बारे में जो आपने इतना क्लियरली बताया कि व्हाट पीई टीचर हैज टू डू, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पीई टीचर्स. उनकी रिस्पांसिबिलिटी सोसाइटी के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, एज वेल एज अपने कलीग्स के लिए भी उनके रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, और उनको कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, बच्चों को उनको क्या सिखाना है, वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया. पूरा जो क्वेश्चन आंसर मेथड थी, दैट वाज फैबुलस. और दूसरा जो आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इन बिटवीन रखा, उससे क्या हुआ कि पूरा जो सेशन था वो इतना लाइव रहा. आपने जो वैल्यूज दिखाए, जो बताए, वो मुझे लगता है कि अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में उनको काम लगना ही है, उनसे वो इंस्पायर होने वाले ही है. आपने जो बताया कि जैसे अफेक्शन, सबको साथ लेके चलना, तो उसके बारे में मुझे वो जो हमने एक मूवी देखा था तारे जमी पर, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि हमें किसी बच्चों को ह्यूमिलेटिंग नहीं करना चाहिए कि नहीं तो कुछ नहीं कर सकता. हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है. हर एक बच्चा कुछ ना कुछ उसमें एक क्वालिटी ऐसी तो है ही जो सबसे अलग उसको करता है, और हमें वो क्वालिटी को साथ में लेके चलना है. उनमें जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी, उनको कैसे हम बाहर लाएंगे, और वो वैल्यूज आपने बताए वो बहुत ही अच्छे थे. और सर मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मैडम यहाँ अपने पास 5 क्वेश्चंस आए हैं. 2 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं उसमें कि आप एक पीडीएफ भेजेंगे, अगर पीडीएफ देंगे तो दैट विल बी बेटर. Sure. एंड वन इज दैट प्लेज जो निसर्ग सर ने बताया. अभी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ सर, यू प्लीज उनके आंसर्स दीजिए. 2 क्वेश्चंस दिए हैं दवे हिमांशु ने. वन इज हाउ टू मेजर ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन एंड स्कूल स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. तो अभी क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में मैं हिमांशु को देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैं उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि फर्स्ट डे से उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पुट अप किए हैं. ऐसे क्वेश्चंस जो हमें लग रहा था हम ना 3-4 अलग फिलॉसफी को लेके चल रहे थे. पीएल फिजिकल लिटरेसी भी है, ह्यूमन वैल्यूज भी है, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट भी है. आई रियली फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उन्होंने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे. उनका जो ये आज का सवाल है, इस पे हम लोगों ने अपना एक छोटा सा मेथड डेवलप किया था, ह्यूमन वैल्यूज की वैल्यूज कैसे क्लास में करी जाए, विच वाज अ सेल्फ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन अपने आप को असेस करेंगे कि इसमें मैं कैसा फील करता हूँ, और टीचर भी अपने आप को असेस करेगा. तो क्योंकि ये भावना है ज्यादा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हर एक की भावना ही इम्पोर्टेंट है. तो इसका हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन डेवलप किया जहाँ पर बच्चे अपना ये लिखेंगे भावना कैसे करेंगे, और टीचर वो लिखेगा. पर हमने दूसरे तरीके से क्या किया कि हमने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं, हम क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही काम करते हैं शीतल मैम, हमारा जो संस्था है सामाजिक संस्था है, तो हम अलग अलग राज्य में जब जाते हैं लेसन प्लान्स में, तो हम हर लेसन प्लान में ह्यूमन वैल्यूज को इंटीग्रेट कर देते हैं. तो उससे ये होता है कि इंटेंशनली उस वैल्यू को डेवलप किया जाता है, और उसका आउटकम ये मिलता है कि आपको एक्टिविटी वो कितने अच्छे से उससे पता लग जाता है कि अगर आपको ट्रस्ट डेवलप करना है तो आपने स्ट्रक्चर ऐसा रखा, मैंने ट्रस्ट काफी डेवलप कर लिया, लेट मी सी कि मेरा सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बुरा प्लेयर, क्या वो टीम में आएंगे इकट्ठे. क्योंकि अगर वो टीम में आए तो वो रेस्पेक्ट करेगा कि यार हमको अगर ट्रिपल लेग भागना है, अरे मैं तो बहुत तेज भागता हूँ, वो तो किसी काम का नहीं. पर अगर ऐसा शिक्षा मिला, चलो इससे आगे भाग के देखते हैं आज,
तो दूसरा पार्ट ये है कि मेजरमेंट के अलावा हमने उसको हर लेसन प्लान में इंटेंशनली इंटीग्रेट किया है, काफी एफर्ट के। और श्रुति ने उसे बहुत ज्यादा मेहनत की कि वो ऐसा कैसा लेसन प्लान लिखा जाए कि टीचर के माइंड में ये रहे कि उसको कैसे पॉजिटिव वैल्यू रीइंफोर्स करना है। तो ये भी जो गाइडलाइंस है मैम वो भी शेयर कर देंगे, कुछ सैंपल्स आपका हिमांशु ने जो क्वेश्चन पूछा है, बट वेरी गुड क्वेश्चन। और इनफैक्ट अगर ऐसा हो पाया तो फिजिकल एजुकेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे जाए। और सर हिमांशु ने दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, द वे हिमांशु इज वेरी गुड जिम्नास्ट, और वो बहुत बच्चे तैयार कर रहे हैं जिम्नास्टिक्स में, और ये इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। उनका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द गुड टूल टू असेस सोशल इंटरेक्शन विथ ऑटिज्म इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम? गुड क्वेश्चन मैम। इसके लिए वी हैव आवर एक्सपर्ट हु आर डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियंस, जो लोग इस पे हमारे साथ काम करती हैं। तो ये मैं क्वेश्चन उन तक पास ऑन कर दूंगा। वो ट्रेनिंग में भी हमारे साथ रहती हैं मैम, युग्मा और उम्मी, रिद्धि, दो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन है जो ऑटिज्म के बारे में काम करते हैं। तो मैं उनसे कनेक्ट करके आंसर कर सकता हूँ। आप मुझे एक बार चैट भेज देना इस सेशन के बाद, ताकि मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा उनको। Sure, sir. So our another question is from Sadra College. Dr. Nimesh Chaudhary ने क्वेश्चन पूछा है, what are the value of sports in the Indian society? What is the value of sports? Yeah. What are the value of sports in the Indian society? तो काफी ओपन क्वेश्चन है, मुश्किल है आंसर करना, बट ऐसा देखा जाए तो व्हाट इज अ पोटेंशियल स्पोर्ट्स वैल्यू कैन ब्रिंग इज अ ह्यूज। हम सब ने अलग अलग वैल्यूज का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। अब आपको एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज जैसे स्पोर्ट्स के अलग अलग सक्सेस का अलग अलग जरूरत है। आई विल टेक सपोज अभिनव बिंद्रास एग्जांपल। तो कल उनका जो विंटू था वो हमेशा ये बोलते हैं कि माय बेस्ट टैलेंट इज माय हार्ड वर्क। मुझे दुनिया में आज तक कोई नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा हार्ड वर्क कर सके। मैं 5 ओलंपिक खेला, पर मैं 22 साल तक गेम को मैंने पसंद किया, मैंने हार्ड वर्क दिया। तो उसको एक तरीके से देखे तो अरे सोसाइटी में ऐसा कौन सा रोल मॉडल है जो किसी चीज को 22 साल तक सेम चीज को इंटरेस्ट, तुमको मिला सोसाइटी में एक परसिवियरेंस का जो वैल्यू है, हमको एक उससे एथलीट से पता लगा। दूसरा, अगर सपोज हमारे साथ पुलेला गोपीचंद है जो इतने कमिटेड थे कि आज 15 साल पहले पूरा देश बोल रहा था बैडमिंटन में कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कमिटमेंट वर्ड को दोबारा वैल्यू डिफाइन किया। तो अगर हम बात करें सोसाइटी में जो सोशल लीडर्स आएंगे हमारे, उनमें परसिवियरेंस, कमिटमेंट, एथिक्स, ये सब वैल्यूज हैं जो हम देखना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स में बहुत बार हमें इनके एपिटोम देखने को मिलते हैं। तो हमें रोल मॉडल मिलता है कि अच्छा इतने साल ये करने से ऐसा हमको भी रिजल्ट मिल सकता है। सो आई वुड से कि हमारे स्पोर्ट्स में वैल्यू का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वी हैव लॉट ऑफ गुड रोल मॉडल्स टू रिफ्लेक्ट। दो रोल मॉडल्स हैव ब्रोकन बाउंड्रीज फॉर 100 ऑफ द लीडर्स। आज की डेट में स्पोर्ट्स स्टार्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड फॉर द लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि वो लीडरशिप का थ्योरी नहीं पढ़ाते, उन्होंने वो किया है और जिया है। 20 साल तक, 30 साल तक वो पैशनेटली अपने फील्ड में वो लीडरशिप की तरफ आए। तो उस दृष्टि से आई वुड से स्पोर्ट्स हैज अ ह्यूज वैल्यू टू प्रमोट एट द लेवल। और दूसरा, जैसे हमने आज बात किया कि स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू इंस्टिल वैल्यू इन ईच सेशन विच वी गेट। तो इसको मैं समराइज करता हूँ, जैसे वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग है ना, आपसे वो 70 मिनट कोई नहीं छीन सकता। तो मैं वही सोचता हूँ, हमारे पास जो बच्चे हैं एक पीई के पास, वो 70 मिनट हमें मिलते हैं, 6 हफ्ते मिलते हैं। तो उन 70 मिनट में हम बहुत सारी वैल्यूज भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर अहमद,
if I may add, just because I felt that this is also a question which often comes. तो एक शीतल मैम एक additional sir. point मैं share करना चाहूँगा. जी सर. Whenever we talk about value, there are two aspects to it. One is the actual value of anything, and the other is the perceived value. जो perceived value होता है, that varies from person to person, and also the society's outlook towards that. And for that is the reason why sports in general, हर country में उसका जो importance है, that is very different. Some countries value it very highly. For us and majority of the developing nations, sport traditionally is not been seen as a source of income, and because social stability or income stability is so important for us in a developing context, and that's why the perceived value of sport is more so related to the personal benefit. कि ठीक है, आप स्पोर्ट खेलोगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. इसके अलावा जो स्पोर्ट्स में रहे हैं, जो अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, एथलीट्स हैं, कोचेस है, दे वैल्यू स्पोर्ट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव. तो इसलिए बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. राइट सर. जैसे आपने बताया कि अपनी सोसाइटी में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें स्पोर्ट्स को देखा जाए, तो आपने बताया वैसे वो कोई इतना, वो लोग जितने भी लोग हैं उनको एज ए पैशन इतना नहीं लेते. पर अब जब देखा जाए सिनेरियो अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. कि जैसे ओलंपिक्स में भी अपने नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं होप दिख रहा है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है. ऐसा लग रहा है. Our future is bright. ये स्लोली चेंज होता है, परसेप्शन स्लोली चेंज होता है. जैसे अपने हीरोज हैं जो स्पोर्ट्स के, वो बढ़ते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे उसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. सो सर, मैडम, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंजन भट्ट ने एक क्वेश्चन किया है कि स्कूल में प्रॉपर इक्विपमेंट के लिए फंड नहीं होता और प्रिंसिपल होते हैं कि वो लोग फंड के देते नहीं है. स्पोर्ट्स के लिए वो लोग अवेयर नहीं है प्रिंसिपल्स, और पीई टीचर को बोलते हैं कि आपको कैसे भी करके अच्छे नंबर्स लाने हैं, बच्चों को एक्सेल दिखाना है. तो उनका क्वेश्चन है कि ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कैसे एक्सेल बता सके या कोई बच्चों को ऊपर कैसे ले जा सके, जबकि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच इक्विपमेंट्स. तो हम क्या कर सकते हैं, ये उनका क्वेश्चन है. तो मैम जैसे फर्स्ट डे से आप शायद अगर नहीं थे तो गोपीचंद सर ने इस बारे में काफी डिटेल में बात किया था कि हमारा लेगेसी थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज से 20-30 साल पहले हम एग्रीकल्चर कम्युनिटी थे, फिर सर्विस ओपन हुआ तो लोग बाहर जाने लगे, माइंडसेट चेंज हुआ, इंटरकास्ट मैरिजेस आज ओपन हो रही हैं. तो उसके जरिए से क्या, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस बहुत ही कम लोगों को पॉजिटिवली मिला. अब जिसने स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसके लिए तो ये कि एजुकेशन ही सब कुछ है. और तभी हम फिजिकल लिटरेसी की बात करें कि ये 20-30 करोड़ बच्चे जब ये किसी भी पोस्ट पे रहेंगे तो इनका चाहे एक्सपीरियंस 5 साल का हो, 10 साल का हो, इनका एक्सपीरियंस इंश्योर करेगा कि हम डिसीजन कैसे लें. तो इट इज वी नीड टू एम्पैथाइज कि हर एक का बैकग्राउंड कैसा है. समाज में वैल्यू स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा नहीं है, एकेडमिक्स का वैल्यू है, और जो सक्सेस के मेजरमेंट है वो अलाइंड है एकेडमिक वैल्यूज के साथ. सो इन करंट सिनेरियो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा हिस्ट्री ऐसा रहा है एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. दूसरा है कि वी ऑल्सो डिस्कस कि क्या हम कर सकते हैं, व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड मोर. सो व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड इज द एनवायरमेंट, जो बच्चे वो हमारे कुछ हद तक कंट्रोल में रहता है. तो वी कैन इन्फ्लुएंस आवर लीडर्स एट राइटफुल प्लेसेस बाय राइटफुल इन्फ्लुएंसेस. हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और बार बार अपनी बात पुटअप कर सकते हैं, सही तरीके से बता सकते हैं. और दूसरा जो मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल है वो मेरा क्लास है. उस क्लास में जो सॉल्यूशन है आई वुड से वुड बी इम्प्रोवाइजेशन, कि नोइंग कि मेरे ये रिसोर्स हैं और ये मुझे आउटकम देना है, उसको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकें. और आई थिंक जस्ट टू गिव दैट फीडबैक टू आवर कोच हु टीच कि ना पूरा दुनिया में से डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, रिसोर्स
का अवेलेबिलिटी हमेशा प्रोपोर्शन में कम होगा एज वी गो, एंड हाउएवर स्पोर्ट का वैल्यू कैसा है। तो ये जो रिसोर्स और नीड का जो डेफिसिट है, इट कुड वेरी, आइदर यू वैल्यू द स्पोर्ट वेरी हाईली कि मुझे स्पोर्ट का वैल्यू इतना है कि हर जगह होना चाहिए, बट उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन भी आई फाउंड अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स सॉर्टिंग कि हाँ ये मेरा कंट्रोल है, मैं इसके बारे में क्रिप नहीं करूंगा, लेट मी सी, इन बच्चों का बचपन आज ही मिला है, तो आज जितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ उससे करूंगा। I'll still keep on pushing with my principal, with my administrator, with my friends to get a better opportunity for children every day. But still, I will utilize those 35 minutes of class for the best possible benefit of children. Right. ऐसा Absolutely right. अब मैं कोच नहीं हूँ, पर मैं बाकी कोच के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो लोग ऐसा सोचते हैं। सही बात है, आपने बहुत सही बताया। मैं भी बताना चाहूंगी गुंजन जी से कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, सोर्सेज बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डेवलपिंग कंट्री और हमारे रिसोर्सेज वैसे भी कम है, वो हमें पता है। पर उसमें भी हमने देखा है कितने रूरल एरिया में से बहुत सारे प्लेयर्स ऊपर आए हैं। जैसे कि हम कर्णम मल्लेश्वरी का ही देख लें, उनका ही ले ले हम उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लोग हैं, उसमें ये भी एक है। अभिनव बिंद्रा जी है, उनके पास सब कुछ था, जबकि मल्लेश्वरी जी के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था। मैरी कॉम के पास जो आपने बताया, उनके पास भी इतने रिसोर्सेस नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। एज ए पी टीचर व्हाट आर आवर ड्यूटीज, जो मैं समझती हूँ, बिकॉज आई एम पी टीचर, सो मैं बता सकती हूँ कि जैसे अपने जो भी रिसोर्सेस है, जैसे आपने बताया, उसमें बच्चों को 35 या 40 मिनट्स में हमें बेस्ट देना है। कुछ ना करते हुए हम इतना तो देख ही सकते हैं कि कौन से बच्चे में पोटेंशियल है। पहले एक बार उसको बाहर निकाल के फिर हम प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटीज है उनके साथ उनका कंसर्न करेंगे कि नहीं सर प्लीज कुछ पुट अप करिए, तो होना ही है। उसमें हमें थोड़ा अपना देना है, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। कहीं ऐसा है 100% कि अगर चाह है तो राह मिल जाए, या वेरी ट्रू, चाह है तो राह मिल जाएगी। मिल जाएगा। राइट सर, बहुत राइट। अच्छा आज का सेशन रहा ह्यूमन वैल्यूज के पर। लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़े हमारे साथ। ये रिकॉर्ड सक्सेस है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और ELMS के इनिशिएटिव का कि आज एट द एंड ऑफ अ सेशन आल्सो वी हैव 90+ attendance. Sir or Gopichand sir is not able to join it today, but they have conveyed their message that we will continuing this legacy of conducting specialized programs for the physical education professions of the Gujarat state. आज इसी जगह पे एक और अनाउंसमेंट है। ये वेबिनार खत्म होते ही रिसर्च मेथोडोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन के ऊपर एक नए वेबिनार के अनाउंसमेंट के साथ हम लोग आएंगे। आज कृपया एक बात का ध्यान रहे सारे पार्टिसिपेंट्स को, कल हमारे 2 सेशंस रहेंगे। कल 16th को हमारे 2 सेशंस रहेंगे। पहला सेशन रहेगा सुबह 11 बजे का, दूसरा सेशन रहेगा हमारे यही टाइम 3 बजे से। मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगा, कल 16 तारीख को हमारे 2 सेशन रहेंगे। सेशन 1 सुबह 11 बजे रहेगा, सेशन 2 आपको वही 3 बजे के टाइम पे रहेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ ELMS स्पोर्ट्स डॉक्टर अमित मालिक सर का, श्रुति मैम का, रान सर का, पंकज सर का, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से फिजिकल लिटरेसी को एक पैशन, प्रोफेशन और एक रिवॉल्यूशन की तरह सबके सामने रखा है। थैंक यू टीम ELMS. Very thank you to Dr. Sheetal ma'am for giving your precious time to our webinar. Thank you on behalf of the Vice Chancellor sir and entire team of Swarnim Gujarat Sports University. मेरी तरफ से आज I am sorry, आज 2 असाइनमेंट थे, बीच में 2 बार ऐसा हुआ, दूसरे असाइनमेंट पे काम करते करते मेरी आवाज भी ये वेबिनार में बीच में आई। थैंक यू पंकज सर, जिन्होंने प्रॉम्प्टली हर एक बार मुझे नोटिफाई किया। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी अगेन इन अ पब्लिक फोरम, सॉरी। कल फिर से 11 बजे मिलेंगे।
मैं ये हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। शुक्रिया। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइज करिए। 3 चीज। अडेप्ट द न्यू सिचुएशन ऑफ आस। थैंक यू। प्रणाम। थैंक यू। Thank you.